Hello and welcome everyone. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we would be learning the solution of the in-text question of chapter number 2 of NCERT chemistry, that is named as solution. So let's get back to the chapter and start solving the questions. So let's discuss first question 2.1. Calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 120 gram of carbon tetrachloride. So first of all, you have to know the formula, which formula you have to apply here. So in this question, the mass percentage is just asking. So this is the formula: mass percent of the compound is equal to mass of the compound in the given solution upon total mass of the solution into 100. So what you need here, mass of the component in the solution means the mass of the solute, and upon total mass of the solution, and it is multiplied by 100. So in the question, solute is benzene and solvent is carbon tetrachloride. So the mass of solute, it is question number 2.1. mass of solute, it is given 22 gram, and mass of solvent, it is also given, it is 122 gram. It is benzene and it is CCl4, carbon tetrachloride. Then what will be the mass of solution? The mass of solution is equal to 22 mass of solute plus 122, which is the mass of solvent, and after solving it is 144 gram. So this is the mass of the solution, and after that you have to apply the mass percent of formula. It is the mass of solute divided by mass of solution, and it is multiplied by 100. So you have to put the value of mass of solute, which is 22 gram, upon mass of solution, which is 144, and it is multiplied by 100. So after solving it, you will get the mass percent. So with the help of this, you can calculate this. So this is the hint for the question 2.1. Let's move to the another question. It is 2.2. Question number 2.2. In question 2.2, calculate the mole fraction of benzene in solution. Calculate the mole fraction of the benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. So whenever any question is there and the percentage is given here, so you have to do just make the solution of 100, and 30 gram is of the solute and 70 gram of the solvent only. So you have to calculate the mole fraction. So first of all, you have to know the formula of mole fraction. For example, XA and XB, these are the mole fraction terms. Then what are the formula? Na upon Na plus Nb, and Nb upon Na plus Nb. And if you are just confusing about the formula, then go to my I section. You will get the notification there. In one of the video, I have just taught everything about the concentration term. So this is the formula. It means it is the number of moles. Number of moles of A. It is the number of moles of B. And how you can calculate the number of moles? So if you want to calculate the Na, it is equal to Wa upon Ma, where Wa is the given mass and M is the molar mass. So number of moles निकालने के लिए हम क्या करते हैं? Given mass upon molar mass का formula लगाते हैं. So question पूछा गया है, calculate the mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride. तो इसका मतलब है हमें weight of benzene मिल गया है, it is 30 ग्राम. weight of CCl4 भी हमें इसी तरह से मिल जाएगा, बिकॉज 70 ग्राम 30% सोल्यूशन बोला हुआ है, तो 30 ग्राम को हमने सल्यूट माना और 70 ग्राम का हमारा CCl4 हो जाएगा, और टोटल जो सोल्यूशन का मास होगा वो 100 ग्राम का हो जाएगा. नाउ इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला? N ऑफ बेंजीन मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन divided by number of moles of benzene plus number of moles of CCl4. So you have to calculate the number of moles of both the benzene and the carbon tetrachloride. So number of moles of benzene is equal to, if you want to calculate the number of moles of benzene, then it is equal to given mass of the benzene, which is 30 gram, divided by molar mass of the benzene. So what is the formula of benzene? C6H6 is the formula. 6 into 12 plus 6 into 1. 6 is the number of atom of carbon, and 12 इसका मास हो जाएगा. 6 एटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के और एक इसका मास हो जाएगा. तो इट इज़ 40
it is 72 plus 6 means it is equal to 78 grams. So this is the molar mass of benzene. So 30 gram of the mass which is given here, and 78 gram is the molar mass of the benzene. Similarly, with the help of this formula, you can calculate it, and it is equal to 0.385 number of moles. Similarly, you have to calculate NCCl4. NCCl4 given mass is 70 and the molar mass is 154. After solving it, you will get it 0.454. So these two are the number of moles of benzene and the number of moles of CCl4. Just put all these value here and you will get the answer. 0.385 plus 0.454, and after solving it you will get the answer of mole fraction. तो मैं सारा सोल्यूशन आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो जब मैंने आपको सारी वैल्यूज़ निकालना बता दिया है, आपको सिर्फ इन वैल्यूज़ को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो ये तो हो गया 2.2 क्वेश्चन का तरीका सॉल्व करने का। अब हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2.3 की तरफ। तो इस जितने भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं उसमें सबसे ज़रूरी हमारे पास क्या है कि हमें गिवन सारे चीज़ों का पता होना चाहिए कि क्या चीज़ गिवन है। इसके अलावा हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2.3, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट hexahydrate in 4.3 liter of solution and 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. So first of all you have to know the formula. In this question हमसे molarity पूछा गया है 2.3 में। तो molarity का formula होता है number of moles of solute upon volume of solution। N2, why it is N2? because number of moles of solute term को जनरली हम 2 सबस्क्रिप्ट से लिखते हैं और सॉल्वेंट को जनरली हम 1 सबस्क्रिप्ट से लिखते हैं। या यहाँ पर वॉल्यूम, ये अगेन आपको मैंने बताया, आई सेक्शन में आप जाके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि वॉल्यूम अगर लीटर में होता है तो हम V को ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन ml में होता है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 1000 हमें करना होता है। ओके, सो ये तो हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है ये भी अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो इन दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल हमें निकालना है। CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6 का नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें इसका गिवन मास और इसका मोलर मास लिखना होगा। गिवन मास हमें दिया गया है 30 ग्राम और मोलर मास निकालने के लिए आपको पहले इसका मोलर मास कहीं अलग निकाल लेना है। जैसे कोबाल्ट का 59 होता है मास, देन 2 multiplied by 14 is the mass of nitrogen, then 3 into 16 is the mass of oxygen, प्लस 6 into 18, 6 यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर मॉलिक्यूल का मास होता है 18। जब इनको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 291 ग्राम के अराउंड। तो यहाँ पे आप 291 रख के इसको आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। देन मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना है, 30/291 इज द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि क्वेश्चन में 4.3 लीटर दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये लीटर में है। अगर ये ml में होता तो हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 30/291 इंटू 4.3, इसको सॉल्व करने के बाद इसका आपको आंसर मिल जाएगा। जो भी आ रहा हो आप यहाँ पे सॉल्व करके लिख लीजिएगा। ओके, इट इज़ 2.3, क्वेश्चन नंबर 2.3। नाउ मूव टू द क्वेश्चन, मूव टू द, this is the A part and next is the B part. In B part the question is 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml. So it is very simple because इस क्वेश्चन में हमें सिंपली एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। B पार्ट में M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 का फॉर्मूला हमें लगा देना है। तो यहाँ पर जैसे मोलैरिटी 0.5 मोलर दी हुई है, इसका हमें 30 ml का सोल्यूशन लेना है एंड मोलैरिटी हमें निकालनी है और हमें सोल्यूशन बनाना है 500 ml का। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि सबकी यूनिट सेम हो, फिर उसको आप सॉल्व कर दीजिएगा। M2 के लिए आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इस तरीके से आप M2 को भी निकालें। ठीक, तो मैं सारी कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ऑलरेडी 10 मिनट्स हो चुके हैं और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही हम सॉल्व कर पाएँ। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2.4। In 2.4, calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। तो यहाँ मोलालिटी आपको दी गई है। मोलालिटी दी गई है आपसे, मास ऑफ यूरिया मीन्स गिवन मास ऑफ यूरिया पूछा गया है। तो हमें सीधे मोलालिटी का फॉर्मूला पहले लिखना होगा।
मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, मीन्स अगर यहाँ यूरिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया लिखेंगे, और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाता है। अगर किलोग्राम में होता है तो ठीक है, ग्राम में होता है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये हमारा फॉर्मूला है। तो मोलैरिटी इज गिवन, इट इज़ 0.25 मोलर सोल्यूशन, ओके। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, अगर आपको मतलब याद है कि नहीं याद है, इट इज़ द मोलिकुलर फार्मूला इज़ NH2CO NH2, और इसका जो मोलर मास अगर आप निकालोगे तो इसका मोलर मास 60 के अराउंड, अगर आप सॉल्व करके देखिए 60 ग्राम ही आएगा। 14 नाइट्रोजन का है, 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, फिर 12 कार्बन का, फिर 16 ऑक्सीजन का, फिर 14 नाइट्रोजन का, और फिर 2 हाइड्रोजन का। तो ये हो जाएगा 16, देन 18, 10, 28, 10, 38, 38 एंड 6, 44, 48, 58 and 2, okay, this is 60 gram. So 60 gram is the molar mass of, this is the molar mass of urea, okay. So just place all these value here and you have to solve the numerical. करना क्या होगा, 0.2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया में गिवन मास आपको निकालना है, जिसको हम x ग्राम मानेंगे, और मोलर मास 60 हो जाएगा। देन इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट से हम डिवाइड करेंगे, जो कि 2.5 किलोग्राम दिया गया है। तो सीधे x के लिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.5, तो ये इसको ग्राम में आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, मोलैरिटी का फॉर्मूला पहले देखा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास आपको निकालना है, मोलर मास आपने भी निकाला 60 ग्राम आएगा, देन उसको वेट ऑफ सॉल्वेंट से आपने डिवाइड कर दिया, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 2.4। और नेक्स्ट 2.5, क्वेश्चन नंबर 2.5 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.5, कैलकुलेट मोलैरिटी and mole fraction of Ki if the density of 20% aqueous Ki is given here। तो क्या क्या दिया है आपको, डेंसिटी दिया हुआ है 1.202 ग्राम पर ml, ये Ki की डेंसिटी है, Ki का एक्वस सोल्यूशन की डेंसिटी है, एंड 20% Ki है, तो आपको यहाँ पर Ki का जो गिवन मास होगा वो 20 ग्राम हो जाएगा, और वाटर का गिवन मास आपका 80 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है मोलैलिटी, तो जो हमारा ए पार्ट है वो मोलैलिटी का है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस फॉर्मूले को हमें लगाना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki का पहले हमें मोलर मास निकालना होगा, मोलर मास दोनों का हमको पहले से लिख लेना है। तो वाटर का आपको पहले से पता होगा, इट इज़ 18 ग्राम, एंड मोलर मास ऑफ Ki का निकालने के लिए हमें पोटेशियम का और आयोडीन दोनों का मास हमें पहले से पता होना चाहिए। तो पोटेशियम का होता है 39 एंड 127 इज़ द मास ऑफ आयोडीन, एंड जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6 एंड 6 1, इट इज़ 166 ग्राम, इट इज़ द मोलर मास ऑफ Ki। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki कैसे निकालेंगे, गिवन मास हमने देखा 20 ग्राम, मोलर मास आपका 166, इससे नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब आपने इसको वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड किया, क्योंकि ये ग्राम में है तो हम क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे हम मोलैरिटी, इसको सॉल्व करिएगा, इससे आपको मोलैरिटी का आंसर मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करना है इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिंपल मैथ से यहाँ अपॉन 1 होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका मतलब है 20 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000। जो भी इसका सोल्यूशन आ रहा हो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट में पूछा गया मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो हमें दिया नहीं गया है, नंबर ऑफ मोल्स तो भी आपने निकालना सीख लिया कैसे निकालेंगे, बस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे आएगा, जिसके लिए आपको एक हिंट दी गई है डेंसिटी की। ओके, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ओके, सो मास ऑफ सोल्यूशन कितना लिया हमने, 100 ग्राम लिया, क्योंकि 100 को ही हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो 100, और डेंसिटी हमारी 1.202, इससे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम, वो भी ml में, क्योंकि डेंसिटी हमारी किस में है, ml में। ठीक है, अब इसके बाद हम सीधे मोलैरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। तो
तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जो कि 100 जो भी आ रहा है उसको आप सॉल्व जरूर करिएगा। ये ml में है इसलिए आप मल्टीप्लाइड बाई 1000 लगाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं और सिंप्लीफाइड तरीके से लिख देता हूँ। जब इसको सिंप्लीफाइड तरीके से लिखेंगे तो मोलारिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इस कैपिटल M इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाई 1.202 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1000। बस इसको आपको सॉल्व करना है, मोल्स पर लीटर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया मोलारिटी। और द थर्ड पार्ट इज सी पार्ट, इट इज़ मोल फ्रैक्शन। थर्ड में हमसे पूछा गया है मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन का हमें पता है, मोल फ्रैक्शन Ki का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ki प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ H2। बहुत आसान है, Ki का नंबर ऑफ मोल्स अभी आपने निकालना सीखा 20/166। और वाटर का कैसे निकालेंगे गिवन मास, जैसे N Ki क्या आएगा आपका, N Ki इज इक्वल टू 20 ग्राम अपॉन 166। और जब आप NH2O निकालेंगे तो वो कितना आएगा, गिवन मास हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था 80 ग्राम का वाटर है और 18 ग्राम इसका 80 ग्राम गिवन मास है, 18 ग्राम इसका मोलर मास है। दोनों को सॉल्व करिए, इस वैल्यू इसमें पुट करिए और सीधे आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया 2.5 और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में 2.6। ओके, तो सोल्यूशन मुझे लगता है आप कर लेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपको आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2.6, H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is this is the solubility, calculate Henry's law constant. तो क्योंकि STP बोला गया है, आपको पहले से इसमें हिंट दे दी गई है कि STP है, तो STP का मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा और स्टैंडर्ड प्रेशर हम 1 बार का मानते हैं। यहाँ पर आपको मोलालिटी ऑलरेडी दी गई है। तो मोलालिटी हमारे लिए क्या होती है, मोलालिटी का मतलब हम नंबर ऑफ मोल से समझ सकते हैं। सॉरी, तो होना क्या है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स का, वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द दैट गैस, H2S गैस का मोल फ्रैक्शन है। तो एक्स यहाँ पर हमसे पूछा गया है KH की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रेशर हमें 1 बार ऑलरेडी दिया गया है, एक्स के लिए हमें यहाँ पर मोलालिटी दे दी गई है 0.195 मोलल, स्मॉल m लिखा हुआ है, इसका मतलब मोलल सोल्यूशन है। इट इज़ मोलल सोल्यूशन, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन 1 किलोग्राम आपको पता है। तो क्या दिया हुआ है, मोलालिटी दी गई है, इट इज़ 0.195 मोलल सोल्यूशन। इसका मतलब है कि 0.195 moles of H2S dissolve in 1 kilogram of water, ये इसका मतलब होता है। ओके, यानी नंबर ऑफ मोल्स मिल गया आपको किसका, H2S का, और वेट मिल गया वाटर का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S आपको ऑलरेडी मिल गया 0.195 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O जो हमारा होगा गिवन मास इट इज़ 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास इट इज़ 18। सॉल्व करना है और सीधे 1 बार इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। X क्या है, ये H2S का ही तो होगा, तो यहाँ पे लिखोगे NH2S डिवाइडेड बाई NH2S प्लस NH2O, ये हो जाएगा फॉर्मूला। सीधे वैल्यूज पुट करिए, नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत ही नहीं, 0.195 है। उसके बाद वाटर का आप यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करके उसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो हो गया 2.6। कोई कन्फ्यूज़न अगर आपको हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। नो, क्वेश्चन हमारा है 2.7, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 in water is this is KH at 298 Kelvin. Calculate the quantity if CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 CO2 pressure at 298 Kelvin. Again यहाँ पर प्रेशर दिया गया है, KH दिया गया है और आपको यहाँ पर पूछा गया है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। आपको CO2 की यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, तो आपको सीधे 2.7 क्वेश्चन में कुछ नहीं, बहुत आसान है ये भी। P इज इक्वल टू KHX का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रेशर इज गिवन हियर 2.5 एटमॉस्फेयर। ओके, इट इज़ P, ये एटमॉस्फेयर में दिया गया है, पर आपका जो KH है क्योंकि वो पास्कल में है तो हमें इसको पास्कल में कन्वर्ट करना होगा।
तो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको 1.013 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और एक बार का जो प्रेशर होता है उसको पास्कल में अगर हम लिखते हैं तो ये 10⁵ पास्कल होता है। इस तरह से इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो प्रेशर हो जाएगा। KH इज गिवन हियर, KH इज 1.67 into 10⁸ पास्कल, दिस इज KH। एंड देन हमें X निकालना होगा, X ऑफ CO2। तो X ऑफ CO2 का मतलब NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O, ओके। इस तरीके से इसको आप सॉल्व कर लेंगे। X देन सॉल्व करने के लिए, ओके, तो जस्ट शुरू करते हैं सीधे सीधे वैल्यूज़। तो आप इसको सॉल्व करोगे 2.5 इंटू 1.013, आपको सीधे वहाँ सॉल्व करके रखना होगा वैल्यू, क्योंकि मेरे पास अभी इतना समय नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करना बता रहा हूँ कि KH हो गया और X2 को भी आप ऐसे ही लिखा रहने दो, XCO2। इसको XCO2 के लिए आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी वैल्यू आ रही हो, ठीक है। 2.5 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10⁸8, ओके, दिस इज XCO2। अब इस XCO2 के लिए आपको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी। उसके लिए क्या चाहिए, NCO2 तो आपको निकालना है, तभी आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाल पाओगे। NH2O आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे NH2O, क्योंकि आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1, तो जो डेंसिटी अगर 1 होती है तो मास और वॉल्यूम बराबर होता है। इसका मतलब है कि 500 ग्राम वाटर का मास हो जाएगा और 18 इसका मोलर मास होता है, नंबर ऑफ मोल्स का। तब इसको सॉल्व करोगे तो इट इज़ 27.78 ये इसकी लगभग वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स की। तो इस सीधे आप NCO2 अपॉन NCO2 प्लस 27.78 और इसको जो भी यहाँ पे सॉल्व करने की वैल्यू आ रही है इसके बराबर रखेंगे। देन क्रिस क्रॉस करेंगे, ओके। और ये इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। 1.67 इंटू 10⁸, इसको क्रिस क्रॉस करके सॉल्व करोगे। देन NCO2 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर जब NCO2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, NCO2 आपको यहाँ से मिल जाएगा, NCO2। अब NCO2 का फॉर्मूला लगा देंगे, WCO2 अपॉन MCO2। तो NCO2 इज इक्वल टू W आपको निकालना है, अब 44 ग्राम इसका मोलर मास होता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 2.8। क्वेश्चन नंबर 2.8 बहुत आसान है, कुछ इसके अंदर है नहीं, मैं सिर्फ आपको सिंपली वैल्यूज़ पुट करना बता रहा हूँ, बाकी आप अपने आप कर लोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 2.8 द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is this. Also find the composition of the vapor phase. तो इसके लिए मैं आपको आई सेक्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें राउल्स लॉ के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ था, जिसमें आपको फॉर्मूला बताया गया है। राउल्स लॉ का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं कि PA क्या होगा, तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA होगा, जहाँ PA नॉट प्योर कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर है, XA उसका मोल फ्रैक्शन है। तो हमें बस यहाँ से यही पूछा गया, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ, पहले पार्ट में पूछा गया लिक्विड मिक्सचर में क्या कंपोजिशन है, मतलब XA हमें पहले पूछा गया, XA भी, और इसी तरह से PB निकालेंगे, PB नॉट XB। तो PA नॉट और PB नॉट आपको ऑलरेडी गिवन है 450 एंड 700, ओके। ये तो हो गया PA एंड PA नॉट। देन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, मीन्स आपको P टोटल दिया गया है। तो P टोटल क्या होगा, PA प्लस PB हो जाएगा। PA प्लस PB का मतलब है PA नॉट, जो कि यहाँ अगर हमने A कंपोनेंट को माना है तो इट इज़ 450 mm, ओके, एंड इट इज़ XA मल्टीप्लाइड बाई XA प्लस 700 mm मल्टीप्लाइड बाई XB, ओके। तो अगर मैं किसी एक कंपोनेंट, अगर XA को रखता हूँ तो आपको पता है कि XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस XB, बिकॉज मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है। तो इट इज़ P टोटल इट इज़ गिवन 600 mm, दिस इज इक्वल टू 450 इंटू 1 माइनस XB। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि दोनों वेरिएबल XA XB हट के एक ही वेरिएबल रह जाए, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब इसको आप सॉल्व करोगे, 450 माइनस 450 XB प्लस 700 XB,
एक ओके। तो ये 450 हो जाएगा और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी प्लस के साथ 250 XB, okay, it is 600. Then 250 XB is equal to 600 minus 450. आसान है, कुछ नहीं है, ओके 150 आ जाएगा. 250 XB is equal to 150, then XB is equal to 150 upon 250. सॉल्व कर लीजिए XB के लिए, फिर 1 माइनस XB कर देंगे, XA मिल जाएगा. तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर लिया ये लिक्विड मिक्सचर में कंपोजिशन XA और XB निकाल लिया, ओके. अब दूसरा पार्ट है कि हमें निकालना है इसका वेपर फेज़ में क्या होगा कंपोजिशन. तो वेपर फेज़ के लिए फार्मूला भी हमने रॉल्स लॉ वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है, तो मैं फिर से आपको यहाँ फार्मूला बता देता हूँ. इसका फार्मूला क्या होता है, मान लेते हैं कि अगर वेपर फेज़ में निकालना है तो PA इज इक्वल टू YA P टोटल, ये फार्मूला हो जाएगा. YA इसी तरह से PB क्या हो जाएगा, YB P टोटल. यहाँ पर YA और YB ये आपको वेपर फेज़ में कंपोजिशन है. तो PA आप पता ही है कैसे निकालना है, X से XB आप निकाल चुके हो, तो यहाँ से आपको PA मिल जाएगा. इस जगह से इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से समझ लीजिए आप, PA नॉट आपको दिया था, XA XB आपने भी यहाँ निकाल लिया है. उसी तरह से PB निकाल लीजिएगा, ये PA PB मिल गया. देन P टोटल 600 दिया हुआ है, YA एंड YB आसानी से आप निकाल लोगे. तो YA क्या हुआ हमारा, YA इज इक्वल टू PA अपॉन P टोटल, ओके. तो PA यहाँ से मिलेगा, P टोटल 600 दिया हुआ है, ओके. तो मुझे लगता है ये भी बहुत आसान है, हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9. तो 2.9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2.9, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन. क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे बेस्ड हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अभी मैं आई सेक्शन में ऐड कर दूंगा लिंक्स, आप वहाँ से जाके उसको देख लीजिएगा अगर आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस. ये प्योर वाटर का प्रेशर दिया हुआ है, इसका मतलब P1 नॉट आपको गिवन है, इट इज़ 23.8 mm Hg. 50 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब ये आपको W2 दिया हुआ है 50 ग्राम, ओके. तो इन सब तभी आप समझ पाएंगे जब आपने सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे. इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर. 850 ग्राम ऑफ वाटर मतलब ये W1 दिया हुआ है, 850 ग्राम ऑफ वाटर, ओके. तो ये W2 है हमारा यूरिया और ये है वाटर, क्योंकि हमें इसके मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी अभी, इसलिए अगर ज़रूरत पड़ती है तो. देन पूछा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग. यानी आपसे P1 पूछा हुआ है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछा हुआ है और रिलेटिव लोअरिंग पूछी हुई है. रिलेटिव लोअरिंग का मतलब आपसे ये पूछा हुआ है, दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग, ओके. सीधे फॉर्मूला लगाना है, हमने पढ़ा हुआ है, आई सेक्शन में आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा. P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू होता है X2, ओके. वेयर X2 मतलब ये सॉल्यूट के लिए है. X2 क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2. N2 और N1 निकालना भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं. N2 N1 निकालना आसान है. सेकेंड कंपोनेंट के लिए N2 निकालना होगा तो N2 इज इक्वल टू गिवन मास 50 हो जाएगा, यूरिया का मास 60 होता है मोलर मास. देन वाटर का ऐसे N1 हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 850 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 18. इससे आप N1 N2 निकालिएगा, यहाँ पुट करिएगा, ठीक है, जिससे आप P1 नॉट भी आपको यहाँ दिया हुआ है, P1 की वैल्यू मिल जाएगी. पहले आप ये निकाल लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा गया है आपसे, ओके. इसको सॉल्व करोगे तो सीधे मिल जाएगा. देन आपसे पूछा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, मतलब P1 पूछा हुआ है, तो P1 नॉट भी ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में. सारी चीज़ें गिवन है, सीधे वैल्यूज पुट करिए, सॉल्व करिए, ओके. मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में. इट इज़ 2.10. In this question, boiling point of water at 750 mm Hg is 99.63 degrees Celsius. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degrees Celsius? It means ये elevation of boiling point का क्वेश्चन है. elevation of boiling point के लिए अगेन मैं आई सेक्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, कैसे बनता है. KF into M, ओके. KF की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी जाएगी, इसमें नहीं दी है क्योंकि इससे पहले कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल्स में KF की वैल्यू दी हुई है, इसलिए यहाँ पे नहीं गिवन है, अदरवाइज क्वेश्चन में आपको दी जाएगी.
देन मोलालिटी, m इज मोलालिटी, तो kf मोलालिटी का फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन मोलर मास से आपको मिलेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर ये ग्राम में। ओके, तो ग्राम में ही क्वेश्चन में दिया है इसलिए मैंने 1000 यहाँ लगा दिया। अब पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm मर्क्यूरी इज 99.63। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा टीबी है क्या? इट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स टीबी माइनस टीबी नॉट। अब ये टीबी क्या है और टीबी नॉट क्या है ये भी पता होना चाहिए। टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ओके, एंड टीबी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ओके, तो कह रहा है कि 99.63 था प्योर वाटर का और 100 करना है, तो यानी कि 100 सोल्यूशन का हो गया और 99.63 आपका हो गया प्योर सॉल्वेंट का। आप 1400 केल्विन में करके रखोगे तो भी डिफरेंस वही आएगा, डिग्री सेल्सियस में रखोगे तो भी वही आएगा। तो इसलिए हम इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा बराबर आते हैं, चाहे वो केल्विन के हों चाहे वो डिग्री सेल्सियस के हों। देन KF, ओके। अब आपसे पूछा गया था हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी आपसे W2 पूछा हुआ है, ओके। और सुक्रोज का फॉर्मूला C6H12O6 का आप सॉरी सुक्रोज नहीं, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C12H22O11, ये आपका सुक्रोज का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे आप सीधे 12 मास होता है कार्बन का, वैल्यू पुट करिए, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो मोलर मास आप निकाल ही लोगे। आई थिंक मोलर मास तो आपको निकालना आता ही है। M2 का मास हो जाएगा 12 कार्बन है, 12 इसका मास है, 22 हाइड्रोजन है, 1 इसका मास है, देन 11 ऑक्सीजन है, 16 इसका मास है। सॉल्व कर लीजिएगा, 300 समथिंग इसका मास आता है। एग्जैक्टली भी मुझे याद नहीं इसकी वैल्यू एग्जैक्टली है क्या, पर आप रखोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, जो भी वैल्यू आ रही हो M2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और W1 जो कि हमारा सॉल्वेंट का मास है, और सॉल्वेंट का मास यहाँ 500 ग्राम दिया हुआ है, 500 मल्टीप्लाइड बाई 1000। बस इसको W2 के लिए सॉल्व करेंगे। M2 निकालना मैंने आपको बता ही दिया है, W2 एक वेरिएबल बचा है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी पता होती है। KF की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी जाती है, सारी वैल्यूज पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। अगेन मैं न्यूमेरिकल को अंत तक नहीं ले जा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट इज 2.11, it is 2.11. In this question, calculate the mass of ascorbic acid to be dissolved in 75 gram of acetic acid to lower its melting point by 1.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, डेल्टा TF की बात कर रहे हैं। ओके, डेल्टा TF का मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम इसका भी मैं आई सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला भी जस्ट सिमिलर है कि डेल्टा TB के जैसा, वहाँ पे एलिवेशन हुआ था, यहाँ डिप्रेशन हुआ है। तो डिप्रेशन का मतलब घट गया है, तो घटने का मतलब जो होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा सॉल्वेंट का उससे कम होगा सोल्यूशन का। तो यहाँ जो डेल्टा TF नॉट लिखा हुआ है ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। कि F की वैल्यू दी जाएगी, KF की वैल्यू, सॉरी मुझे लगता है इसके पहले मैंने KB की बजाय KF लिखा था, और करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फॉर द करेक्शन। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने शायद KB की बजाय KF लिखा हुआ है, तो सॉरी फॉर द करेक्शन। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर TF हो गया होगा तो इसको TB करना होगा। ओके, तो KF इंटू मोलालिटी का हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो अगेन W2 अपॉन M2 इंटू W1 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब सीधे क्या पूछा हुआ है इसमें, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि अगेन यहाँ W2 पूछा हुआ है। एस्कॉर्बिक एसिड आपका सल्यूट है और एसिटिक एसिड आपका सॉल्वेंट है। तो क्या क्या चीज़ गिवन है, KF दिया गया है यहाँ 3.9, ओके। W2 आपको निकालना है, W1 आपको 75 दिया हुआ है, और M2 आप इस फॉर्मूले से, विटामिन C के फॉर्मूले से M2 की कैलकुलेशन कर लेंगे, और TF नॉट और TF इस पूरे की जगह पर डेल्टा TF की वैल्यू दे दी गई जो कि 3.9 है। तो सारी वैल्यूज़ को आप पुट करिए। 3.9 इज़ द KF, 1.5 डिग्री इज़ द डेल्टा T, KF दिया गया है 3.9, W2 निकालना है, M2 एस्कॉर्बिक एसिड का आप निकाल लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से, W1 आपको दिया है 75 और 1000 यहाँ रखेंगे। इसको आप W2 के लिए सॉल्व कर लेंगे, बस आपको आंसर उसका मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गया। अब नेक्स्ट है 2.12 की तरफ चलते हैं। 2.12
आई थिंक ये इंटेक्स क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है. Calculate the osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass this 185000 in 450 ml of water at 37 degree Celsius. So यहाँ पर आपको osmotic pressure का फॉर्मूला लगाना है. ओके, तो ये होता क्या है, N2 by V RT, where N2 is the number of moles of solute. ओके, तो अगेन क्वेश्चन को पढ़ते हैं. Calculate the osmotic pressure in pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185000 in 450 ml of water at 37 degree Celsius. तो आपको क्या निकालना है, पाई. ओके, N2 क्या होगा, W2 अपॉन M2. W2 के लिए आपको गिवन मास दिया गया है 1 ग्राम और इसका मोलर मास 185000 दिया हुआ, तो ये हो गया N2. ओके, तो ये हुआ. देन आपसे वॉल्यूम आपका दिया हुआ है 450 ml, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 450 ml. ओके, देन टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 310 केल्विन का टेम्परेचर हो जाएगा. देन क्योंकि ये STP की बात कर रहा है, सॉरी STP की बात नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, इसका मतलब आप यहाँ पे जब गैस कांस्टेंट लगाएंगे और ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये प्रेशर पास्कल में निकालना है, तो हम यहाँ पे जो R की वैल्यू रखेंगे वो पास्कल की रखेंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 8.314 इंटू 10⁻³ पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन का वैल्यू. ये सारी वैल्यूज़ को पुट करना है और आपको सीधे पाई की वैल्यू निकाल लेना है. N2 मैंने निकालना बता दिया. ओके, V 450 ml में है ये, तो इसको 1000 से आपको मल्टीप्लाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये ml. ओके, तब इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो 1000 से ज़्यादा यहीं डिवाइड कर दीजिए, 0.45 लीटर हो जाएगा. बस इसको सीधे यहाँ पुट कर दीजिएगा. R की वैल्यू बता दिया, T की वैल्यू बता दिया, सारी वैल्यूज़ को पुट करिए और इसको सॉल्व कर लीजिए. ओके, तो ये तो सारे इंटेक्स क्वेश्चन हो गए. एक्सरसाइज क्वेश्चन के लिए हम अलग दूसरा वीडियो बनाएंगे. सॉरी फॉर द करेक्शन, 2.10 में ये बॉइलिंग पॉइंट का पोर्शन था, शायद मैंने वहाँ KF लिखा है KV के बजाय, तो उसको करेक्शन कर लीजिएगा. सॉरी फॉर दैट. और अगर सही लिखा है तो कोई बात नहीं, सॉरी मैं वापस लेता हूँ. अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कुछ ना समझ में आए, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके उसको शेयर भी करिएगा. ओके, थैंक यू.